Welcome students. Today I am going to start your next topic based on potential gradient. Okay, what is potential gradient? Suppose you have a static charge of nature plus q. Okay, and you know it very well that the surrounding is called your electric field, and beyond the electric field there should be a infinity. Okay, you know it very well. Okay, now suppose this is the electric field. Okay, next thing, if I will place a charge from infinity to in this electric field, then you will see that this charge will feel a electrostatic force. Okay, now if you will move this charge from A point to B point, you will see that you have to do your work. Okay, now suppose if you will take this charge at point A and you are going to do a work WA, and again this charge move toward B and this work is WB. Okay, now you will see that the what should be the potential difference between A and B. You will simply say that B is equal to, what is your work done? What is your work done at point A? Then you will say that WA upon what is Q naught, and you know it very well. What is the Q naught? This is the test charge. Okay, now at the point B, what should be your potential? You will say that BB is equal to WB upon Q naught. Okay, and if anyone will ask you that what is the potential difference between A and B, then you will just simplify it. You will just differentiate it. What is the BA minus BB? Now you may calculate it. What will be WA upon Q naught minus WB upon Q naught? Now you will simplify it. Then you will see BA minus BB is equal to WA minus WB upon Q naught. Okay, this is the potential difference between point A and point B. Okay, next thing, suppose you are not moving charge from infinity. Suppose you have charge Q naught here. Okay, this point is C, this point is D. Okay, and you will move this charge Q naught from C to D. Then you will see that the potential difference, the potential at point C is Vc and potential at point is Vd. Then if you will move this charge from C to D, then how much you will do work? You will simply say that W is equal to, what is your test charge is Q naught, and what is the potential difference between C and D? You will say simply Vd minus Vc. Okay. Next thing, what is potential gradient? Okay, now the next topic is potential gradient, विभव प्रवणता. Okay, what is potential gradient? Potential gradient simply says that according to distance, the point to point potential variation will be how much. Okay, मतलब क्या है कि if you have static charge, मतलब अगर आपने यहाँ पर कोई static charge रखा है तो होगा क्या, इस static charge से दूर की तरफ, इससे दूर, if you will move far from static charge, then you will say that the potential point A at potential point B, potential point C, potential point B get decreased. Okay, how much decrease? You will say that B is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. From here you see that as the distance increase, then you will see that the potential difference will be vary. Okay, next thing, what is the potential at point A? Suppose this is the BA. Potential at point B, this will be BB. Potential at point C, this is BC. Okay, now if I will say you that the at which point the potential at which point the potential should be greater than the another point, then you will say at point A potential will be much greater than BB, much greater than BC, much greater than BD. Okay, means this point, ये वाला point जो आपको A point दिख रहा है, ये A point इस static charge से कम distance पर है, and you know it very well that कि अगर यहाँ पर distance कम होता जाएगा तो उस point पे potential की value भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. ठीक है ना, मतलब क्या है कि potential is directly proportional to 1 by R. Okay,
एज द डिस्टेंस इंक्रीज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट गेट डिक्रीज। मतलब क्या है कि डिस्टेंस जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे स्टैटिक चार्ज से, वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि आप टेस्ट चार्ज को इस ए पॉइंट से या बी पॉइंट तक लेकर जाएंगे। ठीक है ना। तो होगा क्या, तो आपको पता है पोटेंशियल इस स्टैटिक चार्ज Q नॉट को जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट करेंगे, उस टाइम पर आप देखेंगे क्या कि आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। ओके, लो पोटेंशियल की तरफ मूव करने का मतलब क्या है कि आपको यहां से यहां तक चार्ज को ले जाने में वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कितना करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया Q नॉट टाइम्स ऑफ VA माइनस VB। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ग्रेडियंट का सीधा सा मतलब यहां पर है कि डिस्टेंस के साथ इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल किस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, मैं कहता हूं कि इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अगर मैं RAB मान लूं। ठीक है ना, ये RAB ना मान के आप इसको डेल्टा R मान लेते हैं। ठीक है ना। और इस पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा V है। डेल्टा V का सीधा सा मतलब है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है ना। मतलब A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V और A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डेल्टा R। तो अगर मैं कहूं यहां पर मुझे निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो जिस पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है उस पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से आपको क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा R कर दूं तो ये वाला टर्म जो आपको दिखता है ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर मैं कहूं इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R होता है। कहने का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है देयर विल बी E इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस के हिसाब से आपको पोटेंशियल का वेरिएशन पता है, उस टाइम पर आप किसी गिवन इंस्टेंट पर किसी गिवन टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड थिंग, अब इसका यूज कैसे करेंगे, हाउ यू विल इम्प्लाइज इट, अप्लाइज। सपोज करते हैं कि किसी पॉइंट पर या डिस्टेंस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस the potential at a given instant at a given time is varies according to V is equal to 2x square plus x। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मुझे अगर A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो A पॉइंट की यहां से डिस्टेंस मैं कहता हूं 1 मीटर है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। दूसरी चीज, मुझे B पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो B की इस स्टैटिक चार्ज से डिस्टेंस निकालेंगे। इस डिस्टेंस को आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग पॉइंट पर आपको अलग अलग पोटेंशियल देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अभी मैंने आपसे क्या कहा है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किसी गिवन पॉइंट पर पोटेंशियल किस इक्वेशन से वेरी कर रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x से वेरी कर रहा है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि एट x इज इक्वल टू 4, मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 4 पर व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है कि मैंने आपको इस पोटेंशियल के वेरिएशन की इक्वेशन दे रखी है और किसी गिवन लोकेशन पर मैं चाहता क्या हूं कि आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप किस तरह अप्लाई करेंगे, यू विल अप्लाई द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं भी पूरी फिजिक्स में जब भी कहीं भी आपको पोटेंशियल की इक्वेशन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही होगी और आपसे पूछा जाए चाहे वो स्टैटिक नेचर हो और चाहे वो डायनेमिक नेचर हो, तो के दोनों केस में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग, अब मुझे निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है यहाँ पर E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन में क्या लिख रखा है, डेल्टा R लिख रखा है। ठीक है ना।
अच्छा, अब मुझे अप्लाई करना है इस वाले फॉर्मूले को इसमें, तो हम कैसे करेंगे? सिंपली डेल्टा वी को अगर हम बात करें किसी छोटे डिस्टेंस के लिए, मैं कहता हूं इस ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस विल टेंड टुवर्ड 0। मतलब क्या है कि इनके बीच की डिस्टेंस तो है बट वी कांट कैलकुलेट। ओके, तो आप कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले को आप डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। मतलब समझ रहे हैं? दिस विल बी फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एंड दिस विल बी फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो अभी हमने क्या करना है? अभी हमें करना है कि हमें पता है कि यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर प्लस x। मतलब x के अकॉर्डिंग किसी गिवन पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब हमें करना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? दोनों साइड को हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। एंड व्हाट इज योर डिस्टेंस? दिस हैज बिकम योर इन द टर्म ऑफ x। ओके, नाउ डिफरेंशिएट इट dv अपॉन dx। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने क्या लिख रखा है? r। तो ध्यान रखने का मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पर r है क्या? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह पोटेंशियल चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैंने इक्वेशन किस में दे रखी है? x में। मतलब डिस्टेंस को किस टर्म में मेजर कर रखा है? x वेरिएबल के टर्म में। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या? 2x स्क्वायर प्लस x को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आपको पता है 4x प्लस कितना हो जाएगा? ये 1। ठीक है ना? आपको निकालना क्या है? उस गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। हमें पॉइंट क्या पता है? x इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं dv अपॉन dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4 निकालूं, तो आपको पता है dv अपॉन dx की वैल्यू है कितनी? 4x प्लस 1। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या रिप्लेस करेंगे? 4। तो व्हाट विल बी योर आंसर? 4 into 4 plus 1, this has become 17. Means the potential gradient at x is equal to 4 is 7. Okay, and you know it, what will be its unit? Its unit will be potential gradient की unit क्या होगी? dv upon dx. What is dv? This is the potential and you know it very well that what is the unit of potential? This is become volt and distance is meter. So its unit has become the volt per meter. ओके, आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में रिलेशन क्या होता है? इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। नाउ यू विल टेक द न्यूमेरिक वैल्यू मॉड ऑफ E इज इक्वल टू व्हाट विल बी? dv अपॉन dr। अब आप कहेंगे यहाँ माइनस साइन हमने क्यों हटा दिया? माइनस साइन हटाने का सीधा सा मतलब है कि उस गिवन पॉइंट पर आपको केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बताना है। तो आप करेंगे क्या? dv अपॉन dr। आपको इससे लेना देना नहीं कि वह माइनस साइन कहाँ गया। माइनस साइन आपको ये बताएगा कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज है और नियर टू चार्ज है। ठीक है ना? तो हमने क्या कर रखा है? ये माइनस साइन को डिस्कार्ड कर रखा है। तो आपकी dv अपॉन dr की वैल्यू कितनी है? 17। तो यहाँ से E की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो कितनी आएगी? 17। और आपको पता है इस E की वैल्यू आपको पता है 17 है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू क्या होता है? F बाई Q। तो यहाँ से यूनिट आप सीधा सा निकाल सकते थे न्यूटन पर कूलम। तो उस गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 17 न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना? कर लेंगे इसे। तो ध्यान रखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के इस्तेमाल छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में 1-2 नंबर के आ सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।